Hello and welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IS Network. Today is day 4 in our series of solving the paper of GS1 2020 mains. And we have already discussed some portions and questions from geography. And in the series of solving the Indian society questions, today is day 4. So looking at what was the question and how we can write a good and comprehensive answer. But before that, kindly like the video, comment what is good about the video and what was the bad and what improvements can be made further. So let's start. So if you talk about the question which came in GS Mains 2020 was from Indian society, and the theme for that question was globalization. Now, globalization is a widely read theme in the portion of Indian society. Every book covers it, every particular magazine of every institute covers it. But the question was a bit of a more applied sense. So we're looking at what was the question and what were the requirements of writing that answer. Okay, so let's start. Now, if you talk about the question was, is diversity? So it is asking, is diversity and pluralism? So these are our keywords, diversity and pluralism, in India under threat due to globalization. This is another keyword. Justify your answer. Okay. Now the important thing which needs to be taken care of is there are many questions which are coming by which are opinion based. Is, has, which we have already discussed in the last class. The question was has. So is, has, these are opinionated questions, which means the answer can be yes, the answer can be no, or the answer can be both yes or no. ठीक है, ये तो clear हो गया. Now this question is of 250 words and 15 marks, which means UPSC will be giving 3 pages to write this answer and roughly around 12.5 minutes needs to be given while writing this answer. So 3 pages will be there. So you need to write a comprehensive answer, an elaborated version of a 10 marker. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे. Now पहली चीज़ जो हम इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन कैसा लिख सकते हैं हम. So for introduction again we will be taking two aspects, that is either what, that is static kind of introduction, or we can take what, the why kind of approach, and that will be our applied or current affairs based. ठीक है, तो अब देखो why वाला करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन भी है मेरे पास, जिसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, बता सकता हूँ कोई भी स्टैटिस्टिक्स की कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जो कल्चर्स हैं विच आर डाइंग ड्यू टू द थ्रेट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन रीसेंट टाइम्स. कोई भी न्यूज़पेपर का मेरे पास स्टैटिस्टिक्स होगा, आई कैन राइट. ठीक है, बट दैट आई कैन यूज़ इन माई बॉडी पार्ट बिकॉज इट्स अ 15 मार्कर. आई नीड टू हैव सम कंटेंट, so I don't waste much content in my introduction. What I will be doing is I will be writing a static kind of introduction, and in that I will be giving my version of what is globalization according to me, so that the examiner knows that I am well versed with the concept and idea of globalization. ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है. अब ग्लोबलाइजेशन के लिए अगर मैं स्टैटिक इंट्रोडक्शन लिखूँ तो ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट interdependence, then second of interconnectedness, ठीक है, then third of integration. ये कीवर्ड्स हैं यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन में जो हमें काम आएंगे. दैट ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़. ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक चली जाती हैं ये चीज़ें, टू सच एन एक्सटेंट दैट एन इवेंट हैपनिंग एट वन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड विल इवेंचुअली अफेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द सेम वर्ल्ड. ठीक है, तो वी कैन राइट दैट ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज टू सच एन एक्सटेंट दैट एन इवेंट इन वन पार्ट ऑफ द ग्लोब अफेक्ट्स द पीपल इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की 3-4 लाइन्स के अंदर वी कैन राइट अ गुड इंट्रोडक्शन. ठीक है, नाउ वी विल कमिंग टू द बॉडी पार्ट, एंड इन बॉडी पार्ट वी विल टेकिंग 2 पार्ट्स. दैट इज हम लेंगे इसमें पार्ट 1. ठीक है, एंड द पार्ट 1 विल बी दैट वी विल गिविंग अ हेडिंग ऐसे कोट्स के अंदर, दैट ग्लोबलाइजेशन एज अ थ्रेट टू डाइवर्सिटी एंड प्लुरैलिटी.
ठीक है, तो हम ऐसा पहला हेडिंग बना देंगे बॉडी का फर्स्ट पार्ट। अब अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, देयर इज़ अ डिक्लाइन, देयर इज़ अ सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन डाइवर्सिटी एंड द मल्टीपल आस्पेक्ट्स ऑफ अ सोसाइटी। ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन चीज़ है जो कि हम देख सकते हैं, इजीली ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी गिविंग मच एम्फेसिस ऑन दिस पार्ट एंड विल बी राइटिंग रफली 70% ऑफ आवर बॉडी टेकिंग दिस पार्ट इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अब डाइवर्सिटी और प्लुरैलिटी कौन सी चीज़ें शो करती हैं, दीज थिंग्स आर बीन शोन बाय माई कल्चर। ठीक है, और कल्चर के डिफरेंट आस्पेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, लैंग्वेज हो सकता है, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, फूड हैबिट्स हो सकती हैं, मैरिज हो सकता है, फैमिली सिस्टम हो सकता है। सो व्हाट आई विल बी शोइंग इज आई विल बी टेकिंग दीज हेडिंग्स एंड आई विल बी शोइंग दैट हाउ देर इज़ अ डिक्लाइन इन ईच ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ द कल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी मेरी ऑन लैंग्वेज। अब ऑन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इसमें हम स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, जस्टिफाई करना है हमारा आंसर, तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को की देर इज़ वन थिंग कॉल्ड एज यूनेस्को एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। ठीक है, यूनेस्को की एक एटलस है एंड दिस एटलस इज ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेजेस। इट सेज दैट देर आर करेंटली 196 लैंग्वेजेस, 196 लैंग्वेजेस विच आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। ठीक है, 196 लैंग्वेजेस हैं विच आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, और आर एट द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम बता सकते हैं वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज दैट देर इज वाइड स्प्रेड डोमिनेंस ऑफ MNCs in the eastern societies from the west. ठीक है, and these MNCs are being dominated by English language over what we say as over regional and what we call as local languages, and therefore there is a threat of extinction of around 196 languages. This is the statistics which was there in the news. अब सेकेंड बात करें ऑन कास्ट सिस्टम, सो व्हाट वी से इज कि देर इज़ रिलैक्सिंग इन द कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट जो नॉर्म्स हैं दे हैव बीन रिलैक्स्ड। ठीक है, वाई, ड्यू टू मोर सोशलाइजिंग। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है, देर इज़ ग्लोबलाइजेशन से देर इज़ राइजिंग व्हाट वी से एज अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, देन एट द सेम टाइम इंक्रीजिंग मोबिलिटी हो गई है। एज अ रिजल्ट द कास्ट सिस्टम एंड इट्स नॉर्म्स आर बीन रिलैक्स्ड। ठीक है, ड्यू टू मोर सोशलाइजिंग, देन ड्यू टू मोर इंटरमिंगलिंग, देन ड्यू टू मोर इंटर कास्ट मैरिजेस। आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग बट आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि इट्स अ 250 वर्ड आंसर, बहुत सारा लिखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द कीवर्ड्स। ठीक है, ये हो जाएगा। एट द सेम टाइम अब हो क्या रहा है कि इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का क्या हुआ है, एक्सपांशन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनका क्या हुआ है, एक्सपांशन। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, बट इस एक्सपांशन के चक्कर में क्या हुआ है कि जो ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड, ठीक है, ट्रेडिशनल कास्ट बेस्ड क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर, वो क्या हो गया है, डाइल्यूट हो गया, इट इज़ डाइल्यूट सब्सटेंशियली। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक है, बट ये इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, बट एक तरीके से डाइवर्सिटी और प्लुरैलिटी के अंदर इट्स अ डिप। ठीक है, अगर हम बात करें रिलीजियस सिस्टम की, देन अगेन ड्यू टू दिस एंड सोशलाइजिंग, इंटरमिंगलिंग एंड मोर अर्बनाइजेशन एंड मोर मोबिलिटी एंड मोर इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स, ठीक है, द रिलीजन हैज़ टेकन मोर मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हो क्या गया है, द इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी हैज़ इन्फ्लुएंस द मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स, हैज़ इन्फ्लुएंस द मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो मटेरियलिस्टिक आस्पेक्ट्स ज़्यादा आ गए हैं रिलीजन बेसिस के अंदर। एट द सेम टाइम यहाँ पर हो क्या रहा है, देयर इज़ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेक्युलराइजेशन। ठीक है, देयर इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सेक्युलराइजेशन। ठीक है, एंड देयरफॉर देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स व्हाट वी कॉल्ड एज टुवर्ड्स रैशनैलिटी। टुवर्ड्स रैशनैलिटी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर लिख सकते हैं टुवर्ड्स साइंटिफिक टेम्पर बोल सकते हैं, टुवर्ड्स द मॉडर्न आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, स्पीच, लिबरल थॉट्स। ठीक है, तो ऑल यू कैन राइट अंडर इट।
नेक्स्ट इफ़ यू मूव ऑन देन इट्स अबाउट फूड कल्चर. अब फूड कल्चर की जब हम बात करते हैं तो न्यू क्यूजीन्स लाइक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट्स आर बीन ओपन. ठीक है, तो न्यू क्यूजीन्स, ठीक है, लाइक चाइनीज़ फूड एंड इटालियन फूड इज टेकिंग द स्ट्रीट्स. ठीक है, इट हैज़ बीन ऑल्सो प्लोरिफरेटेड बाय द कमिंग ऑफ न्यू एप्स. ठीक है, न्यू एप्स किस किस के फॉर्म में आ गई, लाइक जोमेटो, देन वी हैव ऊबर ईट्स, देन लाइक वी हैव स्विगी. ठीक है, so all these have done what? These have homogenized the food culture. Homogenized the food culture. ठीक है, ठीक है, towards more western type. ठीक है, like Italian pizzas and Chinese, what we all know are the cuisines of the time. ठीक है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस हैव बीन कम ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ मोर जंक फूड्स लाइक पिज्ज़ाज एंड बर्गर्स एक्सेट्रा. एट द सेम टाइम देर आर मेनी फ्रेंचाइजीज. ठीक है, द फूड कल्चर इज ऑल्सो बीन इम्पैक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन इन विच वेरियस फ्रेंचाइजीज और MNCs वी कैन से. ठीक है, लाइक मैकडोनल्ड्स. ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया, देन वी हैव बर्गर किंग हो गया, देन वी हैव KFC, विच आर होमोनाइजिंग द फूड हैबिट्स अक्रॉस द वर्ल्ड एंड देयरफॉर इट इज़ अ डिक्लाइनिंग इन द ट्रेंड ऑफ फूड कल्चर. देन इफ यू टॉक अबाउट क्लोथिंग के अंदर क्या हो जाएगा, वी आर नाउ सीइंग दैट जो ट्रेडिशनल अटायर्स हैं और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं आर बीइंग ड्रेस्ड और आर बीइंग वोर्न ओनली एज अ सिंबल ऑफ सेरेमनी. दे हैव नाउ बीन वोर्ड ओनली एज अ सिंबल ऑफ सेरेमनी. ठीक है, while western clothing patterns are dominating in the everyday life. So the traditional dresses have been replaced by what we call as the denim culture. ठीक है, तो ये this is also a visible sign. ठीक है, now there is a denim culture which is in rise across regions, genders and demography. ठीक है, now coming on to the family and marriage aspect, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बता सकते हैं जो कि हम सोसाइटी के अंदर पढ़ते हैं. दैट जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, इज़ बीन रिप्लेस बाय मोर न्यूक्लियर फैमिलीज़. ठीक है, ये चीज़ें हो गई हैं. देन देर इज़ मॉडर्न थाट्स लाइक लिव इन कल्चर हैज़ ऑल्सो बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली. ठीक है, देन वी हैव फैमिली रिलेशंस हैव बीन एडेड बाय मदर्स डे. ठीक है, जो फैमिली रिलेशंस हैं नाउ दे हैव बीन डोमिनेटेड बाय न्यूअर आइडियाज़ ऑफ मदर्स डे. देन वी हैव फादर्स डे. ठीक है, देन डॉटर्स डे एक्सेट्रा. ठीक है, देन वी हैव डुअल करियर फैमिलीज. वी हैव डुअल करियर families, which is a shift from the traditional family system in which woman needs to be taken care of the household chores while the male counterpart used to go outside and earn living for the family. ठीक है, then there is increasing concept of what we call as intercaste marriages. Then there is increasing concept of what we call as love marriages, which is a shift from our traditional diversity. ठीक है, then there is web based alliance system has become a common place, especially in the COVID times. There were various live streaming of marriages and also virtual marriages were on the higher end, which is a direct influence of globalization and which is being backed by the technological upgradations. ठीक है, तो फैमिली और इसके फ्रंट में हो जाएगा. अब क्या होगा कि नाउ वी विल डूइंग व्हाट वी विल बी गिविंग आवर पार्ट 2 because question is asking is. So we will also be saying that in part 2 we will be giving our 30% of the body, and what we will be saying is ki why not, that why globalization is actually not a direct threat to diversity and plurality, and here we will be explaining the role in revival of various cultural aspects. ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के रोल हम बताएंगे. ठीक है, इन रिवाइवल ऑफ वेरियस कल्चरल एस्पेक्ट्स. और यहाँ पर हम थोड़ा सा 30% करके वी विल बी डूइंग आवर पार्ट. अब इसमें क्या बता सकते हैं, देन देर आर सो मेनी थिंग्स दैट देर इज़ इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ हैंड मेड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. ठीक है, कहाँ पे, इन ग्लोबल मार्केट्स. ठीक है, एग्जाम्पल इसका देना चाहो तो देर इज़ अ फेमस एग्जाम्पल कॉल्ड गो ट्राइबल कैंपेन जिसको अमेज़ॉन ने स्टार्ट किया था.
ठीक है, अमेजोन में, इन विच द ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, ट्राइबल प्रोडक्ट्स हैव बीन मार्केटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है. देन देर इज स्प्रेड ऑफ डिफरेंट aspects, like there is spread of yoga, ठीक है. then there is more emphasis given to traditional medicines, traditional schools of medicines, ठीक है. ट्रेडिशनल मेडिसिन्स लिख सकते हैं हम. अब ये मेडिसिन्स कौन कौन सी होगी हमारे पास, इसके अगर एग्जांपल्स देने हो तो हम बता सकते हैं आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स किस तरीके से इसका इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए इट वॉज बीन प्लोरीफेटेड. देन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, एक्सेट्रा, ये हो जाएगा. एट द सेम टाइम वी कैन से, अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें, ठीक है, तो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज क्लासिकल डांसेस विच आर गेनिंग इम्पॉर्टेंस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है. क्लासिकल डांसेस की बात करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एग्जांपल, हमको देना जस्टिफाई करना है तो हम बता सकते हैं कि कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, सो दैट आवर आंसर विल बी हैविंग सम एग्जांपल्स एज वेल, ठीक है. देन ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट, देर इज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वेर इन इम्पॉर्टेंट लोकल एंड रीजनल फोक फिल्म्स हैव बीन शोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है. इसका एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर बता सकते हैं कि जो रिसेंटली जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया के अंदर, विच वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है. इट शोकेस द बेस्ट फोक फिल्म्स ऑफ द नेशन, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर ये भी हुआ था. एट द सेम टाइम एक और चीज़ देखी जा रही है, देर इज़ अ फिनोमेना ऑफ ठीक है, ग्लोकलाइजेशन, ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोकलाइजेशन आस्पेक्ट, ठीक है, तो ग्लोकलाइजेशन में व्हाट वी आर सीइंग इज कि ग्लोकलाइजेशन में इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ग्लोबलाइजेशन कंबाइंड विद लोकलाइजेशन. अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ग्लोकलाइजेशन कैंपेन्स इन्वॉल्व कल्चरली फ्रेंडली मीडिया एंड एड कैंपेन्स टू एनकरेज द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स अमंग लोकल ऑडियंस, ठीक है. तो फॉरेन प्रोडक्ट्स को लोकल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, लोकल ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए देयर इज़ राइजिंग ग्लोकलाइजेशन. अब इसके अंदर हो क्या रहा है कि एग्जांपल अगर मैं बात दूं, ठीक है, तो डोमिनोज जो है, ठीक है, इट इज़ नॉट डिलीवरिंग बीफ पिज़्ज़ाज, ठीक है. तो दे डोंट यूज़ बीफ पिज़्ज़ा बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी फॉर सर्टेन मेजर रिलीजन ऑफ द हिंदूज, ठीक है. तो ये बता सकते हैं. देन वी आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स व्हाट, इंडियन वर्जन ऑफ Amazon, Yahoo, ठीक है. So there are now various apps which are coming in the market like Koo, which was recently in use, ठीक है. Koo हो जाएगा, Koo which was an alternative to Twitter, ठीक है, which was being tweeted by Piyush Goyal recently, ठीक है. Then there are different things की translation of best selling books into local languages हो गया. Then dubbing of movies into local languages like The Lion King has been dubbed in the regional languages like Hindi and Tamil, ठीक है. जो लायन किंग मूवी थी हॉलीवुड की, विच हैज़ बीन डब्ड इनटू हिंदी एंड तमिल. देन देयर इंडियन वर्जन ऑफ ग्लोबल क्यूजीन्स लाइक एडिंग स्पाइस एंड मसाला टू नूडल्स एंड पास्तास, ठीक है. देन ग्लोबलाइज्ड वेज ऑफ यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इन लोकल आस्पेक्ट्स, ठीक है. तो ये हो गया सारा हमारा अदर पार्ट. तो इसको हम 30% के अंदर वी विल राइट अ पैराग्राफ. अगर इसके अंदर आप बात करो तो मैनी लोकल फेस्टिवल्स, ठीक है, जो लोकल फेस्टिवल्स थे पहले, अगर और एस्पेक्ट्स की बात करो तो लोकल फेस्टिवल्स जो थे, ठीक है, लोकल फेस्टिवल्स कैसे कैसे, लाइक ओनम, लाइक लोहरी, ठीक है, विच आर बीन अर्लियर यूज टू बी सेलिब्रेटेड इन लोकल रीजन्स हैव नाउ गेन्ड अ पैन इंडिया करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. ऑल्सो एट द सेम टाइम देयर आर सर्टन रिलीजियस फेस्टिवल्स, ठीक है. रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से हो गए, जैसे दिवाली हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद हो गया, विच आर बीन सेलिब्रेटेड बाय मैनी पीपल अक्रॉस द कंट्री. दीज आर ड्यू टू द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड एंड वेव विच वी सी इन इंडिया, ठीक है. दीज ऑल यू कैन राइट. अब कंक्लूजन की अगर बात करें तो कंक्लूजन में अगेन यू कैन राइट बोथ पॉजिटिव एंड आस्पेक्ट एंड नेगेटिव आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. उसके अंदर यू कैन लिक लाइट दैट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज नाउ एक्टिंग एज अ डबल edged sword, means to say that it has both positive and negative aspects, ठीक है. Positively it is actually giving a what globalization though bought in many westernized thoughts and practices, ठीक है, ठीक है, westernized wave को लेके आया ये,
ठीक है. It has brought some good ideals and thoughts with respect to what we see: scientific temper, rationality, then modern thoughts like democracy, liberal ideas. ठीक है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे, सेकुलरिज्म एक्सेट्रा. बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो प्रूविंग detrimental to certain good traditional practices, habits and cultural traits of the locals. ठीक है, तो इट्स अ बोथ अ वे ऑफ सीइंग द ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट. ठीक है, तो यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, अब अगर हम वापस बात करें तो इट वॉज अ 250 वर्ड्स क्वेश्चन, विच मीन्स रफली यू नीड टू राइट 3 pages. So you need to be very much full-fledged with the content. You need to put many examples, many statistics and thoughts while writing your answer to complete this question. So from tomorrow onwards, you'll be taking some more questions from Indian society, which were of 250 words, that is 3 pages, and we'll see how we can write a comprehensive answer for them. Till then, do like the video, comment below so that we get motivated by seeing your comment, and we'll see next time. Thank you.